So in this video lecture, we will learn to derive various multipliers. So one of the very important and basic concept in macroeconomics is multipliers. And when we talk of multipliers, one of the most common multiplier is government expenditure multiplier. Although the formulas are given in book, but the detailed derivations are sometimes not given. So we will start from very scratch and do the derivations. Okay, so let's start. So first, to start, as you can see from the screen, these are the common multipliers that we will be deriving, and apart from these, many more. So let's start from a two-sector model. Two-sector economy, two-sector model. Now in this two-sector model, and before we start, just one point, whenever we are deriving these multipliers, we are assuming that we are in a Keynesian framework. We are in a Keynesian framework where demand determines my output. So demand has a huge role in Keynesian model. Then the second is prices are taken as given. So prices do not change. They are taken as given or they are fixed as well. So these are the basic assumptions when we do the derivation of these models. Now in a two-sector model, your aggregate demand is equal to C plus I. Now we know that Keynes assume, just a minute. Keynes assume consumption as C bar plus small c y. ये given होता है कि Keynes ये वाला assumption करता है. So this is the autonomous expenditure, consumption, and small c is the MPC. Now if you put these things in the above equation, you get. Now in this equilibrium happens where AD is equal to AS and AS is taken as Y. So this is the equilibrium. Y is equal to AD. Y is equal to C bar plus small cy plus I bar. Now let's take income to one side. 1 minus C common आ गया and this becomes C bar plus I bar. So if you want to find I, you take this here and this becomes your Y star. This is your equilibrium level of income. Now in this case, what we will do is ये जो C bar plus I bar है इसको हम A bar बोल देंगे. So your Y star is equal to wherever you're mentioning an A bar, you will write where A bar is equal to C bar plus I bar. So this is your equilibrium level of income. Till now, we have not found any multiplier. So let us find multiplier. For finding multiplier, we'll totally differentiate the whole equation. Delta y is equal to 1 minus c और ये क्या हो जाएगा डेल्टा ए बार. सो ये इसको फुल डिफरेंशिएशन कहते हैं. इसमें 1/1 माइनस सी बाहर इसलिए आया बिकॉज इट इज एज्यूम टू बी अ गिवन कांस्टेंट. इट इज नॉट अ वेरिएबल, इट इज एज्यूम टू बी अ कांस्टेंट. सो नाउ विद दिस, सपोज हमारी इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंज होता है. ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट से बढ़ने से हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इनकम में या इक्विलिब्रियम आउटपुट में कितना चेंज है. सो व्हाट यू डू इज इन दिस 1 माइनस सी एज इट इज दिस डेल्टा, ये इसके दो पार्ट्स हैं. अब इसमें क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में चेंज हो रहा है लेकिन डेल्टा सी बार जो है वो कांस्टेंट है. सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस इज डेल्टा आई बार. सो अब हम ये डेल्टा आई बार को यहाँ नीचे ले जाएंगे एंड दिस बिकम्स दिस. दिस इज योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. मतलब इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा. अब पॉइंट ये यहाँ पर जो हमने निकाला था, अगर हमने बेसिकली डेल्टा ए बार भी रख सकते थे तो ये मैटर नहीं करता आई चेंज करता है या सी बार चेंज करता है. जो भी चेंज करेगा बाकी सब एंट्रीज जो हैं वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी. ये तो फर्स्ट पार्ट था. अब अगर हम इसी इक्वेशन को देखें, राइट, सो इसमें आई चेंजेस एंड दिस डेल्टा सी बार बिकम्स जीरो, राइट.
So now let's move to another derivation. Now we will assume a four sector economy, four sector model. In this case, y is equal to c bar plus small cy plus I bar plus g bar plus x bar minus m bar. So in this case, what we can see is that government is not levying any taxes. Government is only making an expenditure. So let's take the first case where government imposes lump sum taxes and gives transfers to the people. TR is T bar. So these are lump sum transfers and lump sum taxes that the government gives. तो अब इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगा इस केस में? C बार प्लस स्मॉल c, y की जगह अब लोगों ने पहले टैक्सेस दिए और उनको ट्रांसफर्स मिले, तो ये तुम्हारा y की जगह हम ये लिख देंगे बिकॉज दिस हेयर शुड हैव बीन डिस्पोजेबल इनकम। ये की ओर है क्योंकि पहले वाले में देखो गवर्नमेंट सेक्टर नहीं था, अब गवर्नमेंट सेक्टर है तो ट्रांसफर्स भी दे रहे हैं गवर्नमेंट माइनस टैक्सेस, टैक्सेस यानी ले रहे हैं, तो अब हमारे पास जो बचा है इनकम खर्चा करने के लिए दैट इज ओनली दिस मच। दिस इज आई बार, दिस इज जी बार एज इट इज, दिस इज एक्स बार माइनस एम बार। लेट्स सॉल्व दिस। ये स्मॉल सी ले जाएंगे ऐसे, प्लस सी टी आर बार प्लस आई बार प्लस जी बार plus x bar minus m bar. So if you take all the terms with y on the left hand side, y minus cy, ये पूरे को I can write a bar, right? बट यहाँ पर a बार की डेफिनेशन पुराने वाले a बार की डेफिनेशन से अलग होगी। यहाँ पर a बार की क्या डेफिनेशन थी ये, बट अब a बार की डेफिनेशन थोड़ी अलग होगी। वील सी हाउ। अब क्या करेंगे, वन माइनस सी कॉमन, y कॉमन ले लेंगे, y star is equal to a bar upon 1 minus c, but here where a bar is equal to c bar plus I bar plus g bar. Let's do one thing, right? Where a bar is equal to c bar plus I bar plus g bar plus x bar minus m bar plus ctr माइनस सी टी ए। तो यहाँ पर पहले जब ए को हमने डिफाइन करा था तो कैसे डिफाइन करा था, सिर्फ सी बार प्लस आई बार। अब क्योंकि टैक्सेस एंड ट्रांसफर्स भी हैं, सो दैट इज हाउ यू डिफाइन योर ए की पूरी जो डेफिनेशन है दैट चेंजेस। नाउ इन दिस केस लेट्स डिराइव द मल्टीप्लायर्स। डेल्टा वाई है। अब इसमें हम सपोज करते हैं कि गवर्नमेंट मल्टीप्लायर चेंज होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर चेंज होता है। तो अब इस वाले में if we consider this equation, let's take this equation. You have 1 minus c बाहर आ जाएगा जब हम डेल्टा लेंगे, क्यों, इट इज एज्यूम टू बी अ कांस्टेंट। अब ए बार का डिफरेंशिएशन कैसा दिखेगा, डेल्टा सी बार प्लस डेल्टा आई बार प्लस डेल्टा जी बार प्लस डेल्टा एक्स बार माइनस डेल्टा एम बार प्लस सी डेल्टा टी आर माइनस सी डेल्टा टी ए, ऐसा डिफरेंशिएशन दिखेगा। अब हमें पता है, नाउ लेट्स से कि बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, बस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है या घटता है। तो अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ने या घटने से क्या चीज़ चेंज होगी, इनकम। तो बाकी सब चीज़ें तो हम जीरो आराम से लिख सकते हैं, ये एज इट इज आ जाएगा। डेल्टा सी बार इज जीरो प्लस डेल्टा आई इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा जी जीरो नहीं आएगा, और बाकी अगर हम ये सब देखें सी इंटू डेल्टा टी आर, देखो अब टी आर में भी कुछ चेंज नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है, तो बाकी सब टैक्सेस में भी कोई चेंज नहीं है, तो बाकी सब जीरो आएगा। तो हमारे पास क्या टर्म बच गई यहाँ पर, डेल्टा जी नीचे ले आए, वन माइनस सी।
अगेन योर एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, इसको अल्फा जी से भी डोनेट करा जाता है, बट नोट दैट दिस इज द एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर ओनली इन केस ऑफ लमसम टैक्सेस। अगर हमारे टैक्सेस लमसम नहीं होते तो द मल्टीप्लायर इज डिफरेंट। यहाँ पर ये इक्वेशन थी फ्रॉम स्टार। ठीक है, हमने ये स्टार वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करा है। ये था हमारे इक्विलिब्रियम इनकम, इसमें जो हमने निकाला करा था, जिसमें ए की वैल्यू ये थी, उसके बाद हमने डिफरेंशिएट करके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर निकाला। अब सपोज करो इस वाले केस में मुझे टैक्स मल्टीप्लायर निकालना है। टैक्स मल्टीप्लायर निकालना है तो अब इसी इक्वेशन को देख लेते हैं, ये वाली इक्वेशन, दिस इक्वेशन। लेट्स मार्क दिस इक्वेशन एज डबल स्टार। अब ये जो डबल स्टार वाली इक्वेशन है, राइट, from this double star equation, what do I do is, in this double star equation मुझे पता है कि मेरे जो टैक्सेस हैं वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, जिससे मेरी इनकम में चेंज आ रहा है। अब इसमें ना तो तुम्हारा जी में चेंज आ रहा है, ना तुम्हारा ट्रांसफर्स में चेंज आ रहा है, ना किसी और चीज़ में चेंज आ रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 - c डेल्टा वाई, बाकी सब चीज़ें राइट हैंड साइड पे जीरो हो जाएंगी एक्सेप्ट ये टैक्सेस वाली टर्म, और ये टैक्सेस वाली टर्म के साथ -c भी मल्टीप्लीकेशन में है। सो दिस बिकम्स दिस, राइट। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, आई टेक दिस टैक्सेस नीचे, -c अपॉन 1 - c, इसको हम बोलते हैं लमसम टैक्स मल्टीप्लायर। दिस इज नोन एज लमसम टैक्स मल्टीप्लायर। मतलब कि अगर टैक्सेस एक यूनिट से बढ़े तो इनकम कितने यूनिट से कम होगी। कम क्यों मैंने बोला, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, राइट। अब एक और मल्टीप्लायर निकालते हैं, अगेन फ्रॉम डबल स्टार। हम निकालना चाह रहे हैं ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर। सो बेसिकली अगर गवर्नमेंट अपने ट्रांसफर्स बढ़ाएगी तो इनकम कितने से बढ़ेगी या कम होगी, राइट, हम ये पता लगाना चाह रहे हैं। तो अब इस पूरी इक्वेशन जो डबल डबल स्टार इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे, बाकी सब टर्म्स जीरो रख देंगे एक्सेप्ट ट्रांसफर्स की। तो यहाँ पर ट्रांसफर्स क्या है, यहाँ पर प्लस है, माइनस नहीं है। तो अगर आप फाइंड करोगे तो इट विल बिकम c upon 1 - c। इफ यू नोटिस दिस इज अ ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर, दिस इज पॉजिटिव, यानी कि गवर्नमेंट जैसे ही अपने ट्रांसफर्स बढ़ाती है तो हमारी जो इनकम है वो बढ़ती है। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, यहाँ पर c से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर c से मल्टीप्लाई नहीं करा था। एंड वन मोर थिंग, वाई, बिकॉज यहाँ पर इसके न्यूमरेटर में c आ रहा है और उसके न्यूमरेटर में c नहीं आ रहा है, एंड c इज बिटवीन 0 to 1। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। दिस आई मीन दिस कैन बी यूजफुल while सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अब हमने एक ये वाला केस किया था जहां पर हमने एज्यूम करा कि गवर्नमेंट सेक्टर है, फोर सेक्टर मॉडल है, लेकिन लमसम टैक्सेस हैं। नाउ लेट्स एज्यूम दैट द टैक्सेस आर नॉट लमसम, दे आर प्रोपोर्शनल। Proportional taxes and TR is equal to TR bar, right? So in this case, if we solve, तो अब हमें दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। y is equal to c bar plus small c, y की जगह माइनस यहाँ जो टैक्सेस था। अब देखो जब भी प्रोपोर्शनल टैक्सेस होते हैं तो हमारा जो टी ए होता है वो टी ए बार नहीं होता, ये स्मॉल टी वाई होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इनकम का कुछ पोर्शन हम टैक्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो टैक्स रेट है वो 0.1 है, तो इसमें हमारा टीए क्या हो जाएगा, 0.1 वाई। यानी कि अगर किसी की इनकम ₹1,00,000 है तो वो 0.1 देगा, दैट मीन्स 10,000। अगर इस किसी की इनकम 90,000 है तो वो कितना टैक्स देगा, 9,000। अगर किसी की इनकम 2 लाख है तो वो कितना टैक्स देगा, 20,000। तो बेसिकली वो 10% इनकम का टैक्स दे रहा है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो उसका जो टैक्स की लाइबिलिटी है वो भी बढ़ रही है। जस्ट मिनट। तो अब हमारे यहाँ टैक्सेस की जगह व्हाट वी विल डू इज वी विल पुट -ty, और ट्रांसफर्स एज इट इज रहेंगे, वो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। ये जी बार रहेगा, ये एक्स बार -m बार, और आई बार भी रहेगा। हम चाहे तो फोर्थ सेक्टर इसमें नहीं भी एज्यूम करेंगे तभी भी सेम रिजल्ट्स आएंगे क्योंकि हमने सब कुछ एंडोजिनस सब कुछ एक्सोजिनस माना है। जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लियर दिस। यस।
Okay, so now let's take income वाली terms on one place. अब यहाँ पर जब हम इनकम वाली टर्म्स एक जगह लेकर जाते हैं तो यहाँ सी टी भी आता है, सी बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एक्स बार माइनस एम बार. So what you do is you take y common. यहाँ पर एक प्लस सी टी आर भी आएगा, राइट. इसको हम ए बार बोल देते हैं. यहाँ पर अगेन ए बार की डेफिनेशन इज डिफरेंट. अगर आप बाकी सब टर्म्स को नीचे लेकर जाएं तो ये क्या आएगा? This will be the equilibrium level of income where your A bar will be equal to C bar plus I bar plus G bar plus small t r plus X bar minus M bar. तो अगेन A की जो वैल्यू है इसमें डिफरेंट हो जाएगी. अगेन let's find out the multipliers in this case. Delta y by delta g. अब इसको फाइंड करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? इसको हम स्टार बोल देते हैं. देखो ये वाला स्टार और वो वाला स्टार अलग है, सो डोंट गेट कंफ्यूज. फ्रॉम स्टार अब हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो इस केस में 1 - c 1 - t एंड दिस इज डेल्टा वाई और यहाँ पर डेल्टा ए है. अब इस डेल्टा ए में मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज काम की है, दैट इज डेल्टा जी. बाकी सब चीजें जीरो हो जाएंगी. तो हम अगर ये वाली इक्वेशन देखें इससे इस चार से ऊपर वाली, तो यहाँ पर ये जो सारी टर्म्स है सी बार आई बार सी टी आर ये सब जीरो हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ जी बार बचेगी क्योंकि वी आर एज्यूमिंग ओनली जी इज चेंजिंग. सो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इज इक्वल टू 1 - c 1 - t. This gives you the expenditure multiplier in case of a proportional income tax, in case of a four sector economy. Now, you have found this. Let's find this. When taxes change, how does income changes? Now for this, what I'll do is, ये जो स्टार से ऊपर वाली इक्वेशन है, let me write it fully. So यहाँ पर हमारा जो आंसर आया था फ्रॉम स्टार से ऊपर वाली ये जो इक्वेशन है 1 - c, ये y है यहाँ पर फ्रॉम दिस इक्वेशन. सिंपल ये वाली इक्वेशन है, इसको बस y को एक साइड पे हम ले गए हैं. सी बार प्लस इस वाले केस में अगर आप नोटिस करो, जब हमारा टैक्स चेंज हो रहा है, टैक्स रेट बढ़ रहा है या घट रहा है, जिससे इनकम बढ़ रही है या घट रही है, ये पूरा जो पोर्शन है ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये ना सी बार चेंज हो रहा है ना टी आर ना कुछ. सो ओनली दिस थिंग चेंजेस, सो दिस होल पोर्शन विल रिड्यूस डाउन टू जीरो. Now, when we do the differentiation of this portion, when we do the differentiation of this portion, how do we go about it is, यहाँ पर अब हमें एक प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, राइट. इसको अगर हम y माइनस सी वाई प्लस सी टी वाई कर लें तो बेटर रहेगा और इसको हम ए बार कर लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी. अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं, फुल डिफ्रेंशिएशन. यहाँ पर डी वाई लिखो या डेल्टा वाई लिखो सेम बात है. अब सी एक कांस्टेंट है, सी बाहर ले आए. अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक टी भी है, यहाँ पर एक वाई भी है, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि टी भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है. सो इसको हम ओपन अप करेंगे, टी इंटू डी वाई प्लस डी टी इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो. मैंने बताया ए बार में कुछ चेंज नहीं होगा, सो दिस इज इक्वल टू जीरो. नाउ इन दिस केस डी वाई माइनस सी डी वाई, इसको ब्रैकेट को ओपन अप कर लेते हैं, प्लस सी टी डी वाई प्लस सी वाई डी टी is equal to 0. So now what do we want? We want an answer for this. So what we will do is dy वाली टर्म्स को एक साइड रखेंगे और t वाली टर्म्स को दूसरी साइड. So this becomes माइनस सी वाई डी टी. यहाँ पर हम डी वाई को कॉमन ले लेंगे, 1 - c प्लस सी टी इज इक्वल टू माइनस सी वाई डी टी. अब डी वाई
upon dt is equal to minus c y. और ये कौन सा y है? ये इनिशियल y है, राइट, बिफोर द चेंज इन टैक्स. सो दिस वाज द इनिशियल y. तो दिस इज द proportional income tax multiplier. So now this is the first multiplier which is depending on some endogenous variable, that is initial level of income. It is depending on income as well. No multiplier was depending on any income or anything except parameters. This is the first multiplier which is depending on your income level. Now, these are all the multipliers that we discussed. कुछ कॉमन पॉइंट्स हम नोट डाउन कर लेते हैं एक समरी के पॉइंट से, एक फॉर्मूलाज को. देखो, अगर हम टू सेक्टर की बात करें तो जो हमारा डी वाई बाई डी आई है वो हमारा आ जाएगा 1/1 - c. अगर हम फोर सेक्टर की बात करें तो हमारा डी वाई बाई डी जी आ जाएगा 1/c. और यहाँ पर अगर हम लमसम टैक्सेस एज्यूम करें, यहाँ पर अगर हम डी वाई बाई डी आई निकालें तो वो भी हमारा वन ये आ जाएगा. यहाँ पर अगर हम टैक्स मल्टीप्लायर निकालें तो वो हमारा ये आ जाएगा. यहाँ पर अगर हम ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर निकालें विद द सेम मेथड तो हमारा ये आंसर आ जाएगा. ये सब लमसम टैक्सेस एज्यूम कर रहे हैं हम. उसी तरह अगर हम फोर सेक्टर मॉडल में प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स एज्यूम करें तो हमारा डी वाई बाई डी जी क्या आएगा? 1/1 - c 1 - t. ये अभी अभी हमने डिराइव करा. दिस माइनस c 1 माइनस. कई जगह लेमैन की तरह ये y0 मिस कर देते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग टू डू. सो दिस इज योर प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स मल्टीप्लायर. अगर हमने इसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड करा होता बाय द सेम मेथड तो आंसर हमारा ये आता. अगर हमने इसमें ट्रांसफर्स मल्टीप्लायर फाइंड करा होता तो आंसर हमारा ये आता. So these are the various multipliers that we discussed as a homework, and for better practice, find a find a multiplier. I'll give you the question. C is equal to C bar plus CY. ये YD लिखेंगे यहाँ पर. YD is equal to Y minus TY plus TR given. I is equal to I bar. G is equal to G bar. And in this case, X is equal to X bar. M is equal to M bar plus small m y, right? So in this case, what you have to do is you have to find equilibrium income, point number one. You have to find government expenditure multiplier. You have to find tax multiplier, and you have to find import multiplier. So do this question, and if you have any doubts, let me know. So just giving you a brief, I mean, just a hint of the answers. Right, something like this. Similarly, import क्या आएगा? Import multiplier. Just find it. Denominator कुछ ऐसा ही दिखेगा, but maybe numerator में there would be something. So solve for these, and that would be all.